Good morning. We are looking at the glimpse of Gita and Ganeshwari. Ganeshwari, in fact, in Marathi and Sanskrit. त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षम आत्मा. दूसरा अध्याय, सेकंड अध्याय एंड 45th verse, 45th श्लोक. Now you see in Vedas also, they have given a lot of things which happens to be coming under Sattva, Rajatama, godly qualities, human qualities and devil's qualities. Straight away if you divide them. And Satogun takes us to the enlightenment. Rajogun, you keep some mistake, keep good things and you remain at the uni level. And Tamagun takes us to the devilish cause and you become almost devilish person. But in Vedas, all the three things have been given because they had something in mind that you should achieve the enlightenment. Now that part comes under the Upanishad, where you understand Ahamatma, Prajnanam Brahma, Sarvam Khalvidam Brahma, Ayamatma Brahma and all those things. So you become that one, Atmavan, Prajnanam Brahma. Understand the what is given in the Upanishads and you become one with the Paramartha God, the Almighty God. That is what is expected, Arjuna, from you. तिन्ही गुणी आवृत्त हे वेद जाणे निभ्रांत म्हणून उपनिषदादी समस्त सात्विकते. So whatever is been given in Upanishads, you live a sattvic life, godly life, that is expected from you. And try to get beyond the three gunas, Sattva, Rajatama, you go beyond that. ये रजतमात्मक जे तर निरूपीचे कर्माधिक जे केवळ स्वर्ग सूचक धनुधरा. Even there are places where in Veda it is given that you can ascend to the heavens and all those things. They try for even getting the sukha, means live a happy life and all those things. You have to go beyond that. म्हणून तू जाण हे सुख दुःखासीच कारण येत जणे अंतःकरण निगोदेचे. Because while living as a human being, both the things are going to come, happiness and sorrows. So you go beyond that. Again he is telling, गुणत्रयाते अभेरी मी माझं हे न करी एक आत्मसुख अंतरी विसंब जणे. So you don't get entangled into all this sattva rajatama. You go beyond this and become atmavan. यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Now another one, Shri Krishna is telling, beautiful, there are many ways Lord can explain you and Nareshwar Maharaj also can explain you. You see, the water is everywhere on the earth, so many places. Now, when I said this, he said, sir, there are, the deserts are also there. Okay, boy. So God means, what I mean to say that there is a lot of water on Mother Earth. But you drink that much water which will quench your thirst whenever you are thirsty. That much water you should take. Okay? And that means you should take the crux of everything, inculcate good qualities in you and live a paramarthic life. That is expected from Arjuna. Yavan arth udapane sarvata samplutodake. Udak means water. Tavan sarveshu vedushu brahmanasya vijanata. So from Vedas you take those things which will make you Atmavan straight away. जरी वेद बहुत बोलले विविध भेद सुचिले तरी आपण हित आपले तेची घेपे. What is good for us, we'll take it from the Vedas, because Vedas have tell infinite things. जैसा प्रकटिल्या गभस्ती means sun, आशेषे मार्ग दिसती तरी तेतुले काय चाली जाती सांगेमस. Now because of sun, when it is at the head, in fact you can see everything. We understand which direction we have to go when. Okay, का उदकमय सकळ जरी झाले असे महितळ तरी आपण घेपे केवळ आरतीचे जोगे. If you are thirsty, you don't drink the whole water on the Mother Earth. You drink whatever is required to you. Very simple. You understand the crux and keep walking and get Atma, and then you have to leave this body someday, sometime.
तसे ज्ञानी जे होती ते वेदार्था ते विवरती सॉरी विचरती मीन्स टू वॉक इन, विवरती मीन्स लिव्हिंग. मग अपेक्षित जे स्वीकारिती शाश्वत जे. सो ऑल द नॉलेजेबल पीपल accept whatever is eternal, that is atma, the atmavan sthiti, and leave aside the whatever is not eternal, whatever is nashivant, whatever is not good to yourself. Next one, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तो कर्मणि. At least 1 billion people in India know this. कर्मण्येवाधिकारस्ते. You can perform your duties, you can do your work with your full might, with knowing everything as much the best way, as per your capacity, capabilities and abilities, by learning this, by learning that, and understanding this and that. You can do your work. But if you think that I have studied this, I shall get 100 marks out of hundreds, 100 mark out of 100 in this subject. You work hard, but getting 100 mark or not, that happens to be the result. That is not in your hand. It may happen that one question you are not able to solve, so your half or 1/4 mark is deducted. तो 100 मार्क मिला ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यानी अवलंबित है. ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे लेकिन उसका फल 100 मार्क ही मिलेगा ऐसा नहीं है. आधा 1/4 मार्क कटेगा जैसे मैंने बोला था, ऐसा भी हो सकता है. और हमारे समय इतनी कंपटीशन रहती है कि 1/4 मार्क 1/4 मार्क के लिए भी पहला नंबर जाता था, कभी कभी चलता है. तो ठीक है, तो बता ही नहीं सकते कहाँ कभी हमारी एक मात्रा गलत होगी, या तो यानी ह्रस्व है या दीर्घ, इससे भी गलती हो सकती है, हो सकता है ऐसे. तो उस समय भी हमारा 1/4 मार्क कट सकता है. तो अपने हाथ में फल नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में, ऐसा इनको कहना है. तो वो कीजिए पूरा कर्म, सारी चीज़ें समझने के बाद, सारी पढ़ाई करने के बाद, सारे हमने इस साइड ये साइड अच्छी बुरी बातें समझ के, सारा समझ के आप करते, ठीक है, वो अपने हाथ में. लेकिन उसका कार्य करना अपने हाथ में, फल नहीं. और ऐसा करते समय भी हम वर्क इज़ वर्शिप, यानी कर्म ही भगवान है, इस तरीके से हम जी सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं. ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. म्हणून ऐके पार्था याची परी पाहता तुझं उचित होय आता स्वकर्म है. आपको स्वकर्म अभी कौन सा अच्छा है कि आप तो सोल्जर है, सिपाही है, तो आपको युद्ध करना है. आते समय तो आप ऐसे बोल रहे थे कि इसको मारूंगा उसको मारूंगा, लेकिन अभी आप अगर जा रहे करुणा करके तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. आम्ही समजते विचारले तो ऐसे जे म्हणाले जिने सांडीजे तू आपले विहित कर्म. ठीक है, आप देखिए भगवान होने के बाद भी वो युद्ध से पहले, युद्ध के बाद में, युद्ध के बीच में भी वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए. क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने भी एक बार देखा है कि हम लोग कुछ करते हैं तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, 20-20 साल से 25-25 साल से कर रहे हैं. फिर भी हम लोग अगर कुछ डिस्कशन करते वो आपको एक ऐसी चीज़ हो जाती है, ठाक ऐसे क्लिक हो जाता है, अरे इससे और अच्छा हो जाएगा ये. वैसा वो भगवान जो रहता है वैसा एक अच्छी चीज़ समझ के तो और अच्छा हो सकता है. अभी देखो कुकर की सीटी का आवाज़ आ रहा है, तो कुकर क्यों निकला था कि वैसे तो हर कोई खाना पकाता था, लेकिन क्या हो गया कि 4000 मीटर के ऊपर और कुछ ठंडी में कहीं जगह क्या हो गया कि वो पक ही नहीं रहा था, तो वो कुकर लगा तो फट से पक गया, क्योंकि उतना प्रेशर, उतना टेम्परेचर, उतना ही होने के बाद वो होने लगा. एक अच्छी चीज़ जिसके कारण सबको खाना मिल सके, ऐसा हो सका. देखिए आम्ही समझते विचार तेव्हा ऐसे जे म्हणाले ते जेने साडीचे तू आपले विहित कर्म किया अपना विहित कर्म. सब लोगों से मैंने पूछा तब पता चला कि युद्ध करना ही ठीक रहेगा आपको, क्योंकि युद्ध के समय देखिए आपको उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है युद्ध के दरम्यान.
कोई आता है बोलता निकल जाता है, कोई ऐसा होगा कैसे होगा, कोई करेगा नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है जिंदगी में. पण ही कर्मफळी आस न करावी आणि कुकर्मी संगती न व्हावी, हे सत्क्रियाचे आचरण हेतु है. कर्मफल में आशा नहीं रखना चाहिए और कुकर्म भी नहीं जाने का, कुकर्म के तरफ जाना नहीं चाहिए और कुकर्म करने वालों के संगति भी नहीं रखनी चाहिए. सत्क्रिया ही करनी चाहिए हेतु है, हेतु के बिना, निर्हेतु. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. वैसे कि लास्ट टाइम ने हमने देखा कि पढ़ाई करना अपने हाथ में, उसके फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए. कभी 99% मिलेंगे, कभी 100% मिलेंगे. मुझे तो 0 भी मार्क मिला और 100 मार्क भी मिला है. एक मैं मजा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच ही घटी हुई घटना है. तो आपको योगस्थ कुरु कर्माणि, आपको योगी होके सारे कर्म करने, योगी यानी योग जो इंजती नहीं होगा, भगवान से एक रूप होके सारे काम करने. धनंजय सिद्ध योग, या तो वो फलद्रूप होगा, यानी आप पास होंगे या फेल होंगे, या तो 100 मार्क मिलेंगे या तो 99% मिलेंगे. कोई पास और फेल भी रहता है, आपको पता होगा. कुछ एग्जामिनेशन ऐसे रहते हैं उसमें यस होता है या तो नो होता है, या तो आप सिलेक्ट हो गए या तो रिजेक्ट हो गए. समभूतवा समत्वम योग उच्यते. कभी और ऐसा भी होता है, जैसे चेस में मैंने बताया, आप हार सकते हैं, मैच ड्रॉ हो सकती है, कभी आप हार भी सकते हैं, ठीक है. फिर भी आप समतोल बुद्धि से रहिए. जीत गए तो यार मैं जीत गया भाई, उस दुनिया का सबसे बड़ा हूँ वगैरह नहीं. हार गए तो यार दुनिया का सबसे बुरा, और ड्रॉ गए तो यार वो भी अच्छा मैं भी अच्छा हूँ, नहीं. समतोल बुद्धि से रहने का, समतोल मन से रहने का. समतोल यानी क्या? समतोल ये भगवान ही समतोल है. नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है ही है. ना नष्ट होता है, ना उसको ना बर्थ है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, कुछ भी नहीं, ना नष्ट होता है. समतोल क्या है? भगवान ही है. तो भगवान से एक रूप होने का, भगवत रूप हो जाने का. तो योग युक्त होनी, फळाचा संगत सांडविनी, मग अर्जुना चित्त देवनी करे कर्मे. तो आप योग युक्त हो जाए. योग और युक्त एक रूप हो गए और युक्त यानी समतोल हो गए. देखिए एक एक शब्द में कितना सामर्थ्य है. हो नहीं, फळाचा संग टाकून फल की आशा छोड़ दीजिए. मग अर्जुना चित्त देवनी करेगा, अपना चित्त दे के कॉन्सेंट्रेट करके करी कर्म, आप कर्म कीजिए. परी आदरीले कर्म देवे. अगर आपने आरंभ कर दिया कर्म, जरी समाप्ती दे, अगर वो समाप्त हो गया तरी विशेष ते नोशावे अतोषावे हे ही नको. तो अगर आप जीत गए कर्म पूर्ण करने के बाद, कभी आनंद होना, ज़्यादा आनंद नहीं होना चाहिए. आनंद तो होते रहता है, दुःख थोड़ा सा होते रहता है, ठीक है. किम निमित्त कोणे के ते सिद्धीने वचन रहा गया तरी तेथी जनी अपूरित होकर शोभा है ना. कि अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो भी मार्ग में चलते समय हमें आनंद में है. परमार्थ मार्ग ही आनंदमय मार्ग आहे. आचरता सिद्धी गेले तरी काजाची कीर आले, परी ठेली आहे सगुण झाले ऐसीच माने. अगर आचरण करके सिद्ध हो गया, अब मेरे को 100 में से 100 मार्क मिल गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कोई नहीं. ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान को समर्पित कीजिए. भगवान आपके कारण ही हुआ है. अगर मुझे करना रहा तो मैं पहले ही कर देता. सगुण झाले कि यानी कि सफल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. समतोल रहने का, भगवान से एक रूप रहने का. देखिए जितुल्याला कर्म निभूचे तेतुले आदि पुरुषे जरी अर्पिचे तरी परिपूर्ण सहजे झाले जाण. जो भी आप काम कर रहे हो भगवान को समर्पित कीजिए, तो वो परिपूर्ण हो जाएगा. परिपूर्ण, पूर्ण यानी पूर्ण भगवान ही है, भगवान से एक रूप हो जाएगा. इसी को वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा कहते हैं. देखिए संता संती कर्मे हे जे सरिसेपणा मनोधर्मी तेची योगस्थिति उत्तमी प्रशंसित है. कि ज्ञानी लोग जानते हैं कि इसी को योग स्थिति कहते हैं कि आप हार गए फिर भी समतोल है, जीत गए फिर भी समतोल है, ड्रॉ की मैच फिर भी समतोल है. बहुत बढ़िया. ऐसा आप योग युक्त आत्मवान बनिए. अर्जुन हमको भी ये एक तरीके से ये आज्ञा कर रहे हैं श्री कृष्ण जी और ज्ञानेश्वर महाराज जी. समतोल रहिए, आत्मवान रहिए, भगवान से एक रूप होके
उसको समर्पित करके सारे कर्म कीजिए। धन्यवाद।